नमस्कार दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं यशोभूमि आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और आज 26 तारीख है। आज एक बहुत बड़ा एक्सपो ऑर्गेनाइज हो रहा है, एमआरओ एक्सपो इंडिया, जो कि एयरक्राफ्ट इंटीरियर इंडिया तथा साथ ही साथ ये एरोस्पेस मीडिया ग्रुप के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इसका ये आज फर्स्ट डे, आज इसका इनॉग्रेशन है। और ये कि हॉल नंबर 1 में और स्टैंड 9A में इनका पूरा ये लगा है। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर, फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। और ये सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर बना है और इसमें जो इनवाइटेड लोग हैं वही आ सकते हैं। ये हम चलते हैं आगे और आपको हम दिखाते हैं कि एमआरओ एग्जीबिशन में क्या क्या लगा हुआ है। गेट है और ये एंट्री पे पूरी व्यवस्था की गई है। और ये सारे लोग बेसिकली एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, जिसमें एयर इंडिया है, हैंकल है, गांधी ऑटोमेशन है। मतलब तकरीबन 100 लोग एग्जिबिटर के तौर पे यहाँ आए हुए हैं। और चलिए, उद्घाटन सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर राम मोहन नायडू जी के द्वारा हो रहा है। आइए चलते हैं। ये 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस और बहुत ही शानदार आगाज इसका। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए आगे हम देखते हैं। और ये पूरा इनका यशोभूमि का 2 दिन का बना हुआ है। और ये पूरा एमआरओ एक्सपो के बारे में सारी चीजें डिटेल दी गई हैं। एंट्री में इंटर करने वाले हैं। अब हम लोग मेन एंट्री हॉल में घुस रहे हैं, हॉल नंबर 1 में। आइए आपको दिखाते हैं कि सामने ही एयर इंडिया, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी का काउंटर। और ये इनका बड़ा अच्छा सेल्फी स्टैंड भी है, खूबसूरत सेल्फी स्टैंड। एमआरओ एक्सपो इंडिया बहुत ही बढ़िया। चलिए हम आगे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, and it's very nice to see you. Kindly you tell me your name, please. My name is Jayraj. I am from Tata Elxsi Group. Yeah. I am here part of Air India Okay. to talk about all the technologies what we are doing it for MRO. Okay. To start with the drone-based monitoring Okay. for the aircraft surface, and if any deformity or any structural deformation, we can do the inspection and alert the technicians. And we also have the technology for AR/VR solution Okay. for technicians. Yeah. Yeah. This is to train the technicians, to train the pilots, or anyone who wants to take the understanding about the cockpit system, or for the engine, or for the airframes. It will give a complete training system with a AR/VR module, which is augmented reality and virtual reality technology enabled. And we also have the complete interior, which is configured for A350. This very is nice. something which we have designed for Air India specifically, for Air India to give the interiors, the look and feel of it, the complete immersion feel of a passenger that can be expressed as part of this particular solution. And when you talk about the field repair, so this is a AR/VR solution, and especially for engines, this can give a complete overview to the technician to understand what parts and what all the interconnects and what problem that the technician is facing it. And it gives access to the manuals and gives a direction for troubleshooting and for repairing. And this gives a complete the aircraft maintenance manual and the service manual accessible completely digitally to the technician, so that you don't have to carry tons of paper, and you just have to carry your iPad or your phone and take the use of the technology that is there available for Air India, and so that our efficiency in operation and for the better service to the passengers. तो जयराज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मेजर मेंटेनेंस होता है, तो जो मेजर मेंटेनेंस जब पहले भारत सरकार कराती थी, तो उसके लिए बाहर एयरक्राफ्ट को ले जाना पड़ता,
Right. Am I right? Correct. तो अभी सर जो मेजर मेंटेनेंस आपका सपोज करो 319 है, 320 है, Right. और भी आप लेटेस्ट एयरक्राफ्ट ले रहे हो, तो इसके लिए आपने बड़ा अच्छा ये आपने अपना टेक्नोलॉजी बताया कि यू हैव टू जस्ट सर्च इट with the program and you take it what is the problem with the aircraft. Right. So kindly you tell me about two questions. One is what about the major maintenance are you doing here, or the second one, this programming, this is basically for the aircraft maintenance engineer. They are very happy to see such type of things because they have to search it manually and minutely. What is the problem in the engine side, what is the problem in the the landing gear side, so many issues. So please elaborate me. Right. So the major problem in India, as on today, one, the volume of aircraft that is there in India. So any troubleshoot or any maintenance that you need to do it, it has to taken to Singapore or Hong Kong, right? So the problem is like, we don't have enough number of engineers or enough number of MRO. Correct. Now that gets resolved because India is growing. Yes. And as we speak, we have 1500 plus aircraft is in order. Correct. So in next 5 to 10 years, we will have somewhere close to 2000 aircraft. So we will have all the aircraft maintenance, all the infrastructure will be part of India. That is number one. Yes. Number two, when you have that high volume of aircraft in India, correct, the next question is, do we have a sufficient talent for aircraft maintenance, for technician to get trained, onboard them easily, get them trained, and then so that they can access to the engine, they can access to the cockpit avionics or any subsystem as part of the aircraft. So the training is going to be a next big challenge. Yes. Not only for the technician, even for the pilot. Correct. Like for example, the pilot who is operating an A350. And has to fly for a 737. 737. Right? So there is a dramatic changes between how the cockpit operates between these two, cockpit system. Right now, it requires a heavy amount of investment in training, and this kind of a technology will give you access more to the pilot. It becomes easier for the airliners for the amount it is invested in terms of time and the cost for the pilot training or technician training or the field technician to repair it, troubleshoot it. All becomes much more easier. So nice. So thank you, sir. And apart from this, I am just asking you regarding the government has just taken initiative विकसित भारत. तो एयर इंडिया के बारे में आप बताएं कि आप तो ऑलरेडी विकसित भारत के ऊपर अपना पूरा ड्रीम फोकस किया हुआ है. तो अभी हमारा देश 5 नंबर की इकोनॉमी में है और एयर इंडिया 1 नंबर इकोनॉमी में ले जाने के लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है? See, you already know we have 500 plus aircraft has been already in order. And as we speak, by 2026 or 27, India will become a third largest in terms of number of passengers for aviation sector. Right? Correct. So it will be like, you have a US, China, and India, and that will be the order that we see it in next couple of years. So that kind of a growth, Air India is completely prepared for it. Not only the technology preparation, the people preparation, and the infrastructure preparation. Correct. So that's going to take us not just for Air India as an organization, but for the country, it's going to be a big step forward in the aviation sector. Okay. So nice, sir. And you have given me overall picture of Air India regarding maintenance, new aircraft, and all the things. So nice. Thank you, Mr. Jairaj, and have a nice day. And God bless you for this very nice organization you are participating this MRO. Thank you, sir. Thank you. नाम हुआ सौरभ गुप्ता. सौरभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप MRO में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और अब मैं आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछूंगा. क्या नाम है आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी का नाम है वंदना एयरक्राफ्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. तो आप अपनी वंदना में ये भी कितने साल पुरानी हो गई है वंदना? वंदना का एयरक्राफ्ट जो है वो 12 साल पुरानी है, बट एज अ ग्रुप पहले वंदना कारपेट्स था, तो हम लोग इस इंडस्ट्री में आज से 30 साल से काम कर रहे हैं. 30 साल से कर रहे हैं. चलिए, वेरी नाइस. तो अभी स्पेशलाइजेशन क्या है आपका वंदना का? स्पेशलाइजेशन हम वंदना में सारा कैबिन से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड काम करते हैं. उसमें आप कोई भी सॉफ्ट गुड्स हो, कोई भी हार्ड लाइन हो, चाहे प्लास्टिक पैनल्स, मेटल्स, असेंबली, फैब्रिक कवर, कारपेट, आप कुछ भी बोलोगे इंटीरियर से रिलेटेड सब कुछ करते हैं. तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अभी आप इंडिया में जितनी एयरलाइंस अभी चल रही हैं उसमें कौन कौन आपके क्लाइंट हैं?
हमारे जितने आप नाम लो सब हम सब आपके सबके साथ हैं, काम करते हैं। सबके साथ में। बिल्कुल। तो अभी जो नया एयरक्राफ्ट आ रहा है उसमें भी आप कर रहे हैं, अपने आप को उस हिसाब से प्लान कर लिया है? बिल्कुल, नया एयरक्राफ्ट से मतलब आपका एयरलाइन से रिलेटेड है। एयरलाइन से? हाँ जी, बिल्कुल। A350 भी आ रहा हाँ, है, A321 भी आ रहा है, 21 भी आ तो रहा है, हम उसके लिए पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो एक चीज और जाननी थी मुझे कि जो विकसित भारत का नारा हमारे प्रधानमंत्री साहब दे रहे हैं उसमें वंदना का कितना योगदान रहेगा? सर पूरा योगदान है। पिछले 10 से 12 साल से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने अपनी फैसिलिटी नई सेटअप की है जिसके अंदर हम सारे की सारी चीजें इंडिया में ही बना रहे हैं। अच्छा, तो एज पर द अप्रूवल, एज पर द रिक्वायरमेंट सब कुछ इंडिया में ही कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you, तो thank नाइस, you. थैंक यू, थैंक यू। रेडी? नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनु सक्सेना। मनु सक्सेना साहब, तो आप एयर इंडिया में कहाँ पर हैं अभी पोस्टेड? So Air India, we are at Air India headquarters. So I'm looking after the trainings. ट्रेनिंग, So ओके। engineering training. Hmm. Air India ने एक complete academy setup करी है sector 75 में, and that academy takes care of all the trainings. ऑल द ट्रेनिंग। Flight crew, cabin, ground, engineering. So I'll take care of the engineering part. अभी हम लोग simulators भी वहाँ पे लेकर आ अच्छा, रहे हैं। सिमुलेटर्स भी लेके आ रहे हैं? Yes. चलिए, बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स अखबार में जनरेट हुए रिगार्डिंग फॉर, जैसे अगर आप मेजर मेंटेनेंस की बात करें, माइनर मेंटेनेंस की बात करें, तो आपके यहाँ टेक्नीशियन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जो हमको जानकारी लगी है कि अब आप लोगों ने उसको सारे को रिजॉल्व किया है, जी। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप अपनी टीका टिप्पणी करें। So हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब एयर इंडिया को टेक ओवर किया टाटाज ने, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एक एंटिटी थी सरकार की, जो इस डील का पार्ट नहीं थी। नहीं थे। तो एयर इंडिया ने अपना खुद का मेंटेनेंस शुरू किया। विस्तारा के पास मेंटेनेंस था, जो पुरानी एयर एशिया थी उनका मेंटेनेंस था। ये सारी टीम्स एक साथ आई एंड पिछले 1 साल 1.5 साल में जब से हमारे नए सीटीओ साहब ने टेक ओवर किया है, हमने सारा मेंटेनेंस को कंसोलिडेट करके इनसोर्सिंग शुरू करी। अब हम 98.5% स्टेशंस पे खुद मेंटेनेंस करते हैं। बहुत सुंदर। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं। जो हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी वो हमने इन हाउस ट्रेनिंग से फुलफिल कर रहे हैं। हमारे खुद का ट्रेनिंग का सेटअप है। हम पिछले 6 महीने में तकरीबन 250-300 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। वाह, तो हम अपनी कैपेबिलिटी खुद बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सुंदर। एंड उसी तरह से जो हमारे प्रोसेस हैं मेंटेनेंस के, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लगता है। जो पिछले 1-1.5 साल में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं वो अब दिखना शुरू होंगे लोगों को। बिल्कुल। साथ के साथ जो मेजर मेंटेनेंस की आपने बात कही, मेजर मेंटेनेंस का आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि हम लोग बैंगलोर में एक कंप्लीट MRO सेटअप कर रहे हैं। हाँ, हाँ। सो ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट MRO सेटअप है एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट MRO होगा ये। वेरी नाइस। यस। सो यहाँ पे हम वो MRO सेटअप कर रहे हैं, तो हमारा जो मेजर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है वो भी हम अपना इन हाउस फुलफिल कर लेंगे। इसके अलावा हमने मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल एक होता है पार्ट 21 का, वो अप्रूवल भी अभी रिसेंटली हम लोगों को मिल गया है। अरे वाह। तो हम जो कुछ कैबिन रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब हम इन हाउस उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। अच्छा। तो एक तरह से एक इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं हम, एंड धीरे धीरे चीज़ें आपको धरातल पे दिखने लगेंगी। धरातल पे दिखेंगी और इंडिया को जो मेजर मेंटेनेंस की जो भी बहुत धन्यवाद। कंपनी ने ड्रीम देखा है उसको आप फुलफिल करें, और एयर इंडिया हमारा जैसे पहले चमकता था, बिल्कुल कल भी चमक रहा था और आज उससे ज्यादा चमकेगा, यही मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ। सो नाइस, बड़ा अच्छा लगा धन्यवाद सक्सेना साहब बात करके। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार मैडम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है। सोनम सिंह जी। तो सोनम जी, आपकी कंपनी का नाम है? हाँ हाँ। मैं टीम एविएशन में काम करती हूँ। मुझे 13 इयर्स हो गए इस कंपनी से, और ये हमारी 30 साल पुरानी कंपनी है। 30 साल पुरानी है। और बेस कहाँ है मैडम इसका? हमारी कंपनी मेजरली दिल्ली में बेस्ड है। हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, बट पैन अक्रॉस हम काम करते हैं। हमारा अराउंड 5 जगह पे अभी ऑल अक्रॉस इंडिया हमारा ऑफिसेज है, एंड इवन ओवरसीज में भी हमारे ऑफिसेज है। वेरी गुड। तो हमने काफी एक्सपेंशन किया है, काफी ग्रोथ है हमारी, बिकॉज वी आर गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर्स, एंड बेसिकली वी आर इनटू कंज्यूमेबल्स, पार्ट्स एंड रोटेबल्स बिजनेस। जो एक एयरलाइन को मेंटेनेंस के लिए जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको सारा कैटर करते हैं। हमारा प्राइमरीली जो बिजनेस है वो हम एक्सॉन मोबिल के डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्सॉन मोबिल की जितने भी प्रोडक्ट लाइन है उसके हम साउथ ईस्ट एशिया में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हम जितने भी कमर्शियल एयरलाइन है और जनरल एविएशन है उनको सप्लाई करते हैं, और
हमारे पास और भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जैसे हमारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जैसे पीपीजी हो गया, 3M हो गए। 3M वेल नोन ब्रांड है ऑल अक्रॉस। वेरी गुड। हाँ जी। और अरमाइट है, गुडियर के टायर्स भी हम रखते हैं। देन यूरोकैन के केमिकल्स है हमारे पास, डनलप के टायर्स हैं, मैकिन के क्लीनिंग प्रोडक्ट जो एयरक्राफ्ट को इंटीरियर क्लीनर, एक्सटीरियर तो क्लीनर। ग्रीस किसका आप यूज करती हैं? एक्सॉन मोबिल के हम डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्सॉन मोबिल हमें एग्जाम का ही यूज करते हो? हाँ, हाइड्रोलिक फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड भी एक्सॉन मोबिल देता है। एग्जाम का ही करते हैं। और हाँ, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टूल्स एंड इक्विपमेंट डिपेंड करता है सबका? कौन सी, वो तो मतलब एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है Yeah. उसको क्या रिक्वायरमेंट अब होती जैसे 320 है, हाँ, 319 है, 321 है, है, 353 है, ATR है, ये अलग-अलग। सबका करीब करीब आपके पास हाँ जी, जैसे है। जिसकी रिक्वायरमेंट आती है हम उनको सोच करके हम देते चलिए, हैं तो और स्टॉक। नाइस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। तो नमस्कार, हेलो, आपका क्या नाम हुआ? मीरा अनुराग। मीरा जी। हाँ जी। मीरा जी, और आपकी कंपनी का? हेंकल एडिसिव टेक्नोलॉजीज इंडिया तो प्राइवेट लिमिटेड। हैंकल बेसिकली क्या क्या बनाती है मैम? So Henkel is the world's number one Hmm. adhesive and sealant company, and we are into every industry in the world. ओके। आप ऑटोमोटिव बोलो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, आप एविएशन बोलो, एवरीथिंग। तो इसमें आपका जो इंजन के साइड का है, तो इंजन में आप लोग क्या मेजर मेंटेनेंस देते हैं, माइनर मेंटेनेंस देते हैं, क्या करते हैं? तो हमारे पास इंजन के ओवरहॉलिंग के लिए क्लीनर्स वगैरह हैं। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारे पास ये एब्रेडेबल मटेरियल है अच्छा अच्छा। जो सीलेंट प्रोवाइड करता है, सीलिंग Sealing provide करता है। तो वो एब्रेडेबल मटेरियल अंदर लगता है और जब वो इंजन चलती है तो वो ब्लेड्स के साथ वो एक्स्ट्रा मटेरियल को करता है, निकाल निकाल देता देता है। तो वो सीलिंग एकदम आपका बढ़िया होता है, आपका इंजन एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हम जैसे नेसल वगैरह बनाते हैं कॉम्पोजिट्स के साथ, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल एडिसिव्स हैं, स्ट्रक्चरल पेस्ट हैं, जो आप कॉम्पोजिट का स्ट्रक्चर एडिसिव में काम भी आता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी देता है। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे हमने आइडेंटिफाई करके लगाया है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ यूज हो इसके सकता है, ये पूरा आइडेंटिफिकेशन Yes. किया है। और क्या है मैडम? और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जो ये आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर है। अच्छा। इसके अंदर पॉटिंग कंपाउंड है। हाँ, तो हाँ। आप उसको पकड़ के देखोगे तो एकदम लाइट है, देखिए। राइट? Yeah, there's no weight, but it अच्छा। gives you a lot of structural strength, यस which यस। is very important for your aviation industry. तो ये यूज कहाँ पे होता है? आपके एविएशन इंडस्ट्री में जहाँ पे कॉम्पोजिट्स लगते हैं, वो कंपोजिट्स सारे लगते हैं, वो हाँ इसी जी। का ही पूरा लगता Yes, है। चलिए, yes. बहुत सुंदर। सो ये सैंपल हमने बनाया है, जैसे ये आपको मेश दिख रहा है, ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन शीट है जो आपके मटेरियल आपके एरोप्लेन के ऊपर लगता है फॉर लाइटनिंग प्रोटेक्शन। सो दीज आर ऑल हनीकॉम स्ट्रक्चर्स। ये जो आपका लैमिनेट के को चिपकाने के लिए एडिसिव होता है वो भी हम देते हैं, तो उसके लिए सरफेस प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल हम देते हैं। सो वी हैव एवरीथिंग इन द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, और ये क्या है मीरा जी? ये है आपके टच एंड प्रेप पेन्स जो अच्छा। आपका क्रोमेट कोटिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका टिप ऐसे होता है, हाँ हाँ। आप प्रेस करके आप मेटल के ऊपर अप्लाई करोगे Apply करो। तो क्रोमेट कोटिंग होता है, इट ठीक है। प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी चलिए। काइंड ऑफ कोरोजन। वेरी नाइस। बहुत अच्छा मीरा जी आपने बताया, और बड़े तरीके से आपने पूरा ओवरवाइलिंग किस तरह से वो होती है, और सारी चीजें हैं। आपके पास काफी एक्सपीरियंस है। सो नाइस। थैंक यू हैंकल, एंड थैंक यू so मीरा। much. सो Thank नाइस। you so थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सपना, Yes, आर यू familiar in English or Hindi? English. English. So first of all, welcome to India. Thank you. So first you tell me about your company name. My company name is Safari Aviation Services. We are based in Sharjah, UAE. Okay. So kindly you tell me about your product. What type of product, and which airlines you are supplying, like for Air India, Lufthansa. So kindly you tell me about that. Yeah, sure, sir. We are the aircraft spare parts distributors. We are the authorized distributor for the aircraft tires. That's a Dunlop and a Goodyear tire. And also apart from that, we are the stockist for Michelin and Bridgestone tires. Apart from that, we also have multiple products. That is the Nitto tapes. Yeah. And we do have the aviation threads, Oshino lamps. Osino lights. Yes, this is a lamp which is used the on the lamp. aircraft. Yes. Okay. And also there is the hooks and loops, This lamp is using in the headlight of aircraft. the landing lights. Landing and light. We have we do have the fluorescent lamp, Acha, fluorescent LED lamp. lamps. Okay. Yeah. We do have multiple lamps, Multiple which is lamps. used on the aircraft. Okay. And what is this here, please? Here, these are the different variety of tapes which Tapes. is used on the aircraft, Okay. like the carpet tapes, Okay. aluminium tape, Okay. masking tapes. Okay. It's very nice. Yes.
And you are also collaborated with the Dunlop also? Yes, we are the authorized distributor for the Dunlop Dunlop. and Goodyear tires. So we Okay. do have the training aircraft tires. Okay. That's a Cessna, Piper, Diamond, Tectum. Okay. This We is do all the stock it. aircraft. Yes, we do stock it in our facility. Okay. At any given point of time, at least 8,000 tires will be in our stock Okay. at UAE. So you are giving also a major maintenance or minor maintenance of the aircraft? Yes, we Engine are. aircraft? Yes, for the MROs. For Yes. the MROs? Yes, MROs and airlines. Okay, okay. So nice. I think your company spectrum is spread Yes, out. we are 20 plus year old company. 20 plus year Yes. old company. This is the first time we are exhibiting in India. Usually we are exhibiting in UAE and African region. So this is a nice opportunity to just explore the Indian market. Okay, so this is the first time you have visited here in India, this fair, MRO fair? Yes. Okay, so nice. Thank you. Thank you, And sir. Khuda Hafiz. Yeah. एयर स्पेस कॉरपोरेशन, ये सारे लोग ये प्लेन की सारी सीट्स बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, चाहे जे क्लास हो, वाई क्लास हो, सारे क्लासेस के ये सीट्स हैं। पूरा बहुत ही बढ़िया मेला लगा हुआ है ये एमआरओ का। प्रोपोनेंट और MSA, the safety company. ये पूरा सेफ्टी बेस्ड इनका पूरी टेक्नोलॉजी है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। तो आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरी कंपनी का नाम है फॉल अरेस्ट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके। हम इंडियन इंजीनियरिंग पार्टनर हैं फॉर MSA लैचवेज। MSA लैचवेज 100 साल पुरानी सेफ्टी कंपनी है जो हर तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती है, बट वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉल प्रोटेक्शन ओनली, for fall protection, height safety equipments. Okay. We have all kinds of height safety equipments like vertical lifelines, horizontal lifelines. Okay. This is our aircraft maintenance solution. अच्छा, aircraft maintenance solution for the you major or minor both? All kinds of checks. All kinds. Okay. This is a vacuum-based anchor system. अच्छा, vacuum-based anchor system. Anchor system. Can you define me please? So the standard says when you are working on a height, you need to be connected through an anchor for fall protection. So this is the anchor system. This is totally vacuum based. No electrical or magnetic parts are used. This is powered by this independent gas cylinder. Okay. And what type of gas putting inside? So we can put any type of gas like nitrogen or compressed CO2. CO2. Very nice. So you see all are coated, no metal parts are exposed. These are fully scratch resistance on aircraft. And this is our lifeline system for multiple users. Acha, lifeline system for the multiple users. For multiple users. Okay. Very nice. So more than 4 users can use this simultaneously. And that is for a single user system. And that is manufactured in where? Which country? Manufactured in USA. We import this device from USA. US. MSA is a US based company. They have manufacturing facility. MSA is basically mining and safety appliances. This is for the Indian name, and you are collaborating with Indian name is Fall Arrest Systems and Technology. Fall Arrest System, and MSA is basically the name is US company. MSA company. This is from the US. From the US. US. So nice. And this is a 100 years old company. 100 years old company. More and than here in India, where is your office? So our office is in Noida. Noida. We are Noida based, but we are doing pan India right now. Pan India. We are working with all aircraft companies like Airworks, Air India. We have supplied this equipment to GMR also. GMR also. Very nice. Because they have a big channel of the airport. So they are using over there also. So they have a lot of MROs in India. So we have supplied particularly this equipment to them. And they are also purchasing single user systems. So nice. Thank you. कॉफी का एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छी व्यवस्था की है एमआरओ के लिए। यहाँ काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। पूरा भारतीय वायुसेना का ये काउंटर।
बहुत सुंदर। ये MRO एक्सपो में एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, और एयरलाइंस के जितने भी मशहूर कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड वो सारी यहाँ आई हुई हैं, और वो यहाँ पे अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? कौशिक चक्रवर्ती। कौशिक चक्रवर्ती। तो दादा नमस्कार। नमस्कार। तो ये मैं पूछूंगा आपसे सबसे पहले कि आपकी कंपनी कहाँ की है? न्यू बॉम्बे। न्यू बॉम्बे की है। और कितने साल से हैं आप लोग दादा? 2015 से। 2015 से हैं। और ये कंपनी बेसिकली मेड इन इंडिया है या फिर कोलैबोरेटेड है? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। तो दादा आपके क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा कुछ बताएं। हम लोग 2015 से स्पेशली इन एयरक्राफ्ट केबिन इंटीरियर मींस वी स्टार्टेड एज अ रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। केबिन इंटीरियर पार्ट्स रिपेयर, दैट इज सीट रिपेयर, गैली इंसर्ट रिपेयर, वाटर बॉयलर, ओवन, व्हील कार्ट, आप जो देखते हो, लेबोरेटरी, टॉयलेट, एंड अपार्ट फ्रॉम रिपेयर वी हैव प्रोडक्शन आल्सो। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। स्पेशली इन सॉफ्ट फर्निशिंग लाइक सीट कवर, एयरक्राफ्ट कारपेट, कर्टन। अच्छा, एयरक्राफ्ट का पूरा फुल सॉल्यूशन जो प्लेन का होता है, केबिन पार्ट। So production approval. So all these are approved by DGCA. You know, repair. All approval by the DGCA. DGCA India. Production as well as design also. Okay. So we are probably only the second or third company in India having all three approvals. Like हम लोग के पास production भी है, design भी है, and repair के भी। So we are slowly entering into external repair also. So currently हम लोग फिलहाल जो है ना, फिलहाल हम लोग सीट, केबिन मोनूमेंट, साइड वॉल, लेदर रेस्टोरेशन, गैली एंड लैब मोनूमेंट, गैली एंड लेबोरेटरी। आपको जो आप जो एयरक्राफ्ट में खाना खाते हैं, जो गर्म खाना मिलता है, ओवन रहता है उसमें। अच्छा, वो भी बॉयलर, गर्म पानी, वाटर बॉयलर रिपेयर है, पैनल रिपेयर है, डोर है, फॉसेट, लैब फॉसेट एंड ऑल दिस स्टफ, कार्बोनेट, गैली इंसर्ट, यू नो, कॉफी मेकर, ट्रैश कॉम्पैक्टर, लाइट, बैटरी। Now we are entering into exterior also. अच्छा, exterior also. Very nice. So this is already we have capability. ये future plan है। अच्छा, ये opposite sheet metal, radome aircraft सामने जो radome रहता है, nacelle and thrust reverser. So these three probably will start by this year end in Delhi. Okay. So हम लोग का फिलहाल ऑफिस जो वर्कशॉप है मुंबई में, ये दिल्ली में चालू करेंगे। और this may take another year or two. Thank you. सारा पूरा मेला MRO कवर कर लिया है, और बहुत ही सुंदर, बहुत सारी इंडस्ट्री आई हुई है यहाँ पे, और अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ चल रहे हैं। फिर आपको हम कुछ और दिखाएंगे, तो फिर आगे चलते हैं। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है। ओके।